Assalamualaikum. This is going to be our first lecture of organic chemistry, and inshallah, in this we will see what are heterocyclic compounds and why do we study about heterocyclic compounds in our organic chemistry. So let's start without delay, and let me share the presentation with you guys so that we can start our today talk. So हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं हम नाम से पता चल रहा है एक तो दे आर साइक्लिक। अब साइक्लिक है और इनके अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। साइकिल के अंदर एक कार्बन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एक या एक से ज़्यादा विद हेट्रो एटम्स। अब साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं उससे एक चीज हमें ये पता चलती है कि साइक्लिक है। तो यहाँ पर देयर इज नो स्पेसिफिकेशन कि आइदर एक रिंग है या दो रिंग है या तीन रिंग है। सो यहाँ से आपको ये बात पता चली कि साइक्लिक है, आइदर इट कैन बी वन only one cycle, it consists of only one cycle, or there can be more than one cycle fused together. ठीक है, हम आगे जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो वी विल सी द एग्जांपल इन व्हिच देयर आर मोर देन वन साइक्लिक कंपाउंड्स फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेटेरोएटम्स जो होते हैं, हेटेरोएटम्स जो हैं ये कार्बन की जगह रिप्लेस कर देंगे एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। सो it can be atom, any atom other than carbon, so it can be nitrogen, sulfur or oxygen. Okay, and other than that, what you have to know about heterocyclic chemistry, that a ring structure, this cyclic structure, it can be 5-membered ring structure or it can be 6-membered ring structure. Now let's see why we have to study about heterocyclic compounds in our organic chemistry class. So the first importance of heterocyclic compound is that it naturally occur. ठीक है, there are different compounds in our nature which consist of heterocyclic compounds, and they can अब यहाँ पर बात हुई कि they are naturally present, but they can also be prepared on commercial basis, and commercially जो है वो different dyes or drug industries are already manufacturing heterocyclic compounds. They are important building blocks for new material possessing interesting electronic, mechanical और biological properties. यानी कि बहुत से ऐसे materials जो हैं जिनकी uses जो हैं electronic field में, mechanical field में और biological field में मिलते हैं, ये उनका important building block है, यानी कि उनको बनाने में, ऐसे materials को manufacture करने में role play कर ऐसे का building block है। ये रोल प्ले करने से मतलब ये है कि either it can be starting material or it can be it can be used as a solvent, as a catalyst. So in short, they are just helpful in manufacturing of these materials. And lastly, many of these compounds fulfill important physiological functions, क्योंकि अभी सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी पोजेस करते हैं ऐसे मटेरियल। तो अब यहाँ पर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। many of these compounds fulfill important physiological functions not only in plant but animals too. Thus कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अब एग्जांपल आपके पास मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में भी क्लासिफाइड एज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, and also along with that nucleic acid and some of amino acid, peptide and proteins possesses nitrogen containing ring system. So अब यहाँ पर आप देखो तो उसने प्रोटीन की उसने कहा कि ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बल्कि न्यूक्लिक एसिड एंड along with that amino acid and peptides. Okay, amino acids पे बात खत्म करते हैं, they are also heterocyclic in compound in nature, and other than that प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स में उसने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा हेटेरोएटम प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे वो कह रहा है पोजेसेस नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग सिस्टम। सो रिंग सिस्टम है यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है। तो हमारी हेटेरोसाइकिल के अंदर दो चीजें थी, वन इज रिंग सिस्टम होना चाहिए, सेकंड हेटेरोएटम होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने उस चीज को फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि प्रोटीन एंड पेप्टाइड कंटेन रिंग सिस्टम एंड हेटेरोएटम कौन सा प्रेजेंट है, nitrogen is present as a heteroatom in these ring system of protein and peptides. So जबकि उसने न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स में स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के अलावा कोई और भी हेटेरोएटम हो सकता है, लेकिन प्रोटीन के केस में जो हेटेरोएटम है वो नाइट्रोजन है। So these are so अब आपको पता चला कि why we will
going to discuss heterocyclic compounds in organic chemistry because they अगर इनके biological जो है प्रॉपर्टीज हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है सो हमारी डेली लाइफ जो है ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी फिजियोलॉजी में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और एज अ फार्मासिस्ट आपको अपनी फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए सो दैट कि उस फिजियोलॉजी में किसी भी किस्म की कोई जो है डिस्टर्बेंस आती है किसी किस्म का कोई इफेक्ट ऊपर नीचे हो रही है तो यू कैन ट्रीट दैट dysfunction. That was all about importance of heterocyclic compounds and in the next video we are going to discuss pyro. Till then, take care. Allah Hafiz.